विका, आर्यादित्य सबका एब्सेंट मार्क हो रहा है. ग्रिशा, संजना, सारा, इप्सा और अभिनव, सिर्फ इतने बच्चे प्रेजेंट है. एंड व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे, अब हम मॉर्निंग सेशन में साइंस के लेक्चर्स कर लेंगे और शाम को कर लेंगे मैथ्स के लेक्चर्स. मॉर्निंग में साइंस करने से बेनिफिट ही हो जाएगा, जो लोग मिस कर रहे हैं उन्हें सिर्फ थियोरी देखना है ना मोस्टली. तो इसीलिए शाम को अब हम मैथ्स कर लेंगे. सो दिस इज दिस फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी साइंस का दैट वी आर स्टार्टिंग फॉर 10th क्लास. राइट एवरीवन, जल्दी से सब लोग सेटल हो जाओ, कैमरा ऑन करके. अगम जल्दी. चले बच्चे, करते हैं शुरू. मैं थोड़े डार्क से रूम में बैठी हूँ ना, थोड़ा लाइट्स ऑफ करके. बट आई एम विजिबल प्रॉपरली राइट? नहीं, लाइट बंद कर दो. दिल्ली में इट्स टू हॉट ऑलरेडी, तो लाइट्स मेक इट इवन हॉटर. हाँ, तो सिटिंग लाइक दिस. ओके, सो नाउ electricity we are discussing. So what is electricity? What is electricity? It is source of electric current, right? So actually it is a source of a form of energy, electric energy. That is electricity. Right everyone? है ना? Okay. So we use electricity at every step of our life, even when we are connected. That is through a gadget which is running on electricity, right? You need to charge in your laptop for that. So when you're watching TV, that is through electricity you do. When you're sitting in your ACs, under your fans, that is also because of electricity. When you're eating delicious food, some machinery must have been used in grinding, blending things, that which are all running on electricity, right? So it is very important. Even imagining a single day without electricity would be tough now on. So now the electricity that we are talking about in general areas, the dynamic form of electricity. But in eighth, when we studied some natural phenomena chapter in science, what did we study there? We study the static electric current as well, right? Static electricity. And what do you used to call that? Electrostatic charges, right? So the electrons that have been moved to a place and static there and now making a body charged, that is electrostatic charges, right? So for this we used to do quite very simple interesting activities like rubbing scale on our dry hair and then picking up the paper bits with it, or wearing a silk shirt for long which starts to stick to our body, or rubbing two woolen blankets and producing sparkles from there. So all these kind of things were the examples of electrostatic charges, right? So now these two things together, uh, they've got charges, right? And now there are two types of charges in both of these things together. One is a positive charge, another is a negative charge. So how do you define a charge? What is a charge? Can anyone tell me what is a charge? Don't go on read this. It's not written there. Tell me, what is charge? Is it something that the current is carrying? What is it? Is charge a property? Ma'am, could it be defined as the intensity of the flow of electricity? Intensity. Hmm. So one charge, how do you define one unit charge? It is actually the property of uh, the running current. So electric charge is actually the property, right? It's nothing in physical. It's a property. Understood or not? Clear or not? Okay. So now
First of all, let us get to the very basic thing that we have learned since years, that charges are of two types. One is positive, another is negative. And by convention, if we have given one thing a positive charge, the opposite of it is given the negative charge, right? There's nothing as such called as positive or negative charge. It's just that we have called by convention one thing a positive charge, opposite of which is by conventionally called negative charge. Understood everyone or not? Clear, no? Okay, so now here, so yes, when you have rubbed the glass rod or the silk cloth, uh, when you have rubbed the glass rod with the silk cloth, then by convention, one of the thing that got charged, of course, both of those got charged, no? And they both got oppositely charged. So one thing out of that you gave by convention a positive sign, the other you gave it the negative sign. That's it, right? So there's nothing as such positive or negative. It's just that we have conventionally allotted them signs. Okay. Now, so we have learned here that opposite charges, they attract each other. This we have been doing since sixth grade, and similar charges, they repel each other. So whenever you bring two glass rods that are rubbed with two different silk cloths together, they'll repel each other. Why? Because they are similarly charged, right? So similar charges repel each other. And when you bring both of those silk cloth together, they'll also repel each other because they're also similarly charged. But what if you bring the uh, glass rod and silk cloth together then? Because they're oppositely charged, they'll attract. Right? Very simple, no? The SI unit of electric charge is coulomb. From here, important fact starts. अभी तक ऐसा ही था, बचपन का रिवीजन चल रहा था. So SI unit of electric charge is coulomb. So how do you measure charges? You measure them in coulombs, right? Like you measure mass in kgs, similarly you measure charge in coulomb. So 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, 4 coulomb are the charges, right? The quantization of charges, which is denoted by capital K C. Coulomb is denoted by capital K C. Now, how is it defined as? 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on electric equal charge placed at a distance of 1 meter from it. Now, what is the meaning of all this thing that is said here? So that means if a charge is placed here and 1 meter from it, let this be 1 meter for, because I cannot show you 1 meter on screen, no? So if this is one charge and this is another charge, both are 1 meter each, right? Now at a distance of 1 meter each, so 1 coulomb is the electric charge, is that much electric charge which can exert a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on the other charge placed 1 meter apart from it. Understood or not? Clear or not? So it is that quantity of charge is called as 1 coulomb charge, which is actually attracting or repelling. Now it depends on what are the charges, if they are both like charged or opposite charged. So now that depends. It can be the force of attraction, it can be the force of repulsion. So what is this 1 coulomb exerting on this 1 coulomb? If that is 9 into 10 to the power 9 newtons, then these charges are said to be 1 coulomb. Understood or not, everyone? Clear? Have you written that? These definitions are very important because once you're over with this chapter, no, this seems unimportant, but this comes in 1 mark. ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है अभी, जो अभी लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बहुत बड़ी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट. ओके, सो now we know that the matter contains positively charged particles called protons and negatively charged particles electrons. A proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and similar is the charge on the electron. So that is the quantization of a charge. You cannot find a charge smaller than this possible in nature. So this is the smallest quantity of charge possible together.
right everyone or not? This is called as quantization of charges, as in if I tell you that there exists some charge, so you must be always sure of that this is the least charge possible. If there is charge existing greater than this, then it will be a multiple of this number for sure. This is the least charge possible. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the smallest charge possible ever. आप इमेजिन कर पा रहे हो हाउ स्मॉल इज दिस नंबर 1.6 into 10 to the power minus 19, मतलब 1.6 को 19 zeros लिखकर डिवाइड करना है नीचे. Such a small number it is. इतना छोटा नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली द चार्ज पॉसिबल, लीस्ट चार्ज पॉसिबल. इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता कुछ. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? It is obvious that the unit of electric charge called coulomb is much bigger than the charge of one proton or one electron. So let's do one numerical everyone. ये NCERT का numerical है. Here they have given you a charge on one electron, right? एक minute बेटा. So one electron is having 10 to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? So if I वहीं पे रखा है बच्चा, पेन प्लीज ला दो. So अभी ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, लेकिन what is 1 coulomb? From here can you calculate for me what is 1 coulomb? This fact I have told you, 1 electron के अंदर this is the charge. Thank you. तो कितने number of electrons can give you 1 coulomb of charge? How would you find that out? Anyone? Name the method. Divide. Unitary method. है ना? Finding the value of unit coulomb. 1 coulomb. So transpose this 1.6 into 10 to the power minus 19 towards the electron side and find me what is how many electrons have got that. Sorry. So when I am asking 1 coulomb is there in how many electrons? So for 1 coulomb, you will do 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. That means this, bring it to the top, 10 to the power 19 by 1.6. Right or not? Or bringing this one more up, that will be 10 to the power 20 by 16. Solve it. Take it 100 to one side and solve it. So 10 to the power 18 into 100 by 16. By 16 means cutting it into half 4 times. So 58, 25, 4, 12.5, 2, and 6.25, 1. Right or not, everyone? है ना? Dividing by 2 is cutting it into half once. Dividing by 4 is cutting it into half twice. Dividing by 8 is cutting it into half thrice. And by 16 is cutting it into half 4 times. So 6.25 into 10 to the power 18 electrons have got together. These many electrons will give you 1 coulomb charge. Understood or not, bache? So we will write this and always remember that the unit electric charge called coulomb is much bigger than the charge of one proton or one electron. So 1 coulomb is a very big charge in front of a charge of an electron or a proton. Right, everyone or not? Clear? Noted this down? Numerical noted? ठीक है बच्चे? समझ में आ गया सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में? ओके, चलो मूविंग अहेड.
So now we will always remember that the SI unit of electric charge, 1 coulomb, is equivalent to the charge contained by these many electrons together. And this is a very big number, beta. 625 के पीछे 16 zeros लगाने हैं बेटा. 16 zeros. These many electrons together will give you 1 coulomb charge. Understood or not, बच्चे? विजुअलाइज कर पा रहे हो? माइंड में सेट हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 कूलम चार्ज के लिए? समझ में आ गया कितना बड़ा होगा 1 कूलम? ठीक है, चले अभी आगे. ओके, नाउ दिस इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ये बचपन में बहुत बार पढ़ा है बेटा. व्हाट आर कंडक्टर्स? दोज दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, राइट? सो ऑब्स्टेकल्स आर लेस. Insulators are those who do not allow the current to pass through them. So they have got great obstacles, hindrances to the electric current to flow. And semiconductors, what are semiconductors? Some which allow current to pass through them, but not very. Partially should be the word used. Partially. Sometimes they do, sometimes they don't. Right? So those are semiconductors. Okay. So ये तो you don't want me to read line by line, है ना बच्चे? Right. Now, why, how are these things? ये 6th क्लास का कुछ टॉपिक है, थोड़ा जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं. लाइन बाय लाइन कवर नहीं कर रही हूँ मैं इसे. कि what all do you call as conductors? Those that have got free electrons. जो कि अगर मैं इसे विजुअलाइज करें तो हमने ये 6th में भी ऐसे किया था कि अगर ये एक पीस है ऑफ मेटल तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस. क्योंकि electrons are not stable, no, they are continuously moving around the nucleus of the atom, right? So they are moving in different directions which you will learn in 11th class. वो spiral, floral और अलग अलग patterns बनाते हुए nucleus के आसपास घूम रहे होते हैं. तो when together in a piece of metal तो फिर वो randomly इधर उधर बहुत सारी directions हो जाती हैं हर एक atom के लिए. तो वो इस तरीके से haphazardly why they moving. लेकिन as you connect it to battery, जैसे ही आप उसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, दिस आई हैव जस्ट ड्रॉन अ सेल, वन मोर सेल मेक्स इट अ बैटरी. जैसे ही आप उसे अलाइन कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, कन्वेंशनली आपको कैसे दिखने लग जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो ना इलेक्ट्रॉन्स का. तो वो आपको ऐसे एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन सब मूव हो रहे हैं. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ये कन्वेंशनल करंट है. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में होता है या ऑपोजिट होता है? बताओ, कौन बताएगा मुझे? किसे याद है 9th क्लास का टॉपिक? Ma'am, direction. In the direction of current or opposite to the direction of current? Electrons का Opposite to movement the direction of current. opposite to the direction of current. तो actually क्या है, अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली लेना है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो ऐसे हो रहा होता है. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? लेकिन वो सब ऐसा एकदम डिसिप्लिन मोड में मार्च पास शुरू कर देता है. So this difference between the movement of electrons, this is random and this is in one direction from negative to positive end. Negative end से positive end की तरफ electrons का flow होना this is current. Right or not everyone? Clear? Okay. So this is this free electrons only that makes a conductor a conductor. So it is the free electrons which actually enables a piece of metal to become a conductor. Right? Now this we have already discussed static electricity and current electricity. Static electricity is when the electrons have moved from one place to another. They've actually moved from one place to another. They have settled there and then they have made the other thing charged. So that is static electricity. याद है कैसे static electricity कैसे करते थे? 3 methods याद है static electricity के? कैसे charges transfer होते हैं? याद है किसी को?
बेटा याद रखना 10th का सिलेबस जहां भी लिखा होता है ना सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां साथ में ब्रैकेट में लिखा होता है ऑल इंक्लूडेड इन 9th। तो जितना 9th का सिलेबस है ना, साथ में वो सिलेबस होता है 10th का। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कौन से ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के क्या मेथड पढ़े थे? इंडक्शन, कंडक्शन, याद आ रहा है कुछ? Yes. इंडक्शन क्या था? कंडक्शन क्या था? Conduction is when they come in contact to transfer बिंगो। इंडक्शन क्या था? um, through air, like यू through ओनली ब्रिंग any इट other. क्लोजर टू द अनचार्ज बॉडी। किसी को भी याद नहीं आ रहा? और थर्ड थर्ड क्या था? बहुत ही खराब बात है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हो पर शायद रिटेन नहीं कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि बस डिलीट ऑल, नेक्स्ट चैप्टर पिछला डिलीट। नहीं करो बेटा, थोड़ा सा रिटेन करने की कोशिश करो। तो इस टॉपिक को दोबारा से पढ़कर आना प्लीज। ओके। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने देखी थी, पहले पढ़ी थी, जहां चार्जेस ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं। अभी कैसे भी हो सकता है, जैसे लाइटनिंग होती है तो कोई क्लाउड्स के जो चार्जेस होते हैं वो हमारी टॉल बिल्डिंग्स को टच थोड़ी कर रहे होते हैं, दे आर क्वाइट एट अ डिस्टेंस। लेकिन फिर भी जो टॉल बिल्डिंग्स है वो ऑपोजिटली चार्ज हो जाती है क्लाउड से, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट लाइटनिंग। ऑपोजिट चार्जेस हो जाते हैं ना, तो वो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो फिर वो लाइटनिंग अट्रैक्ट करती हैं टॉल बिल्डिंग्स। तो वो भी एक चार्ज ही है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म ही है। एंड अनदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज कमिंग इन योर हाउसेस, सप्लाइड इन योर हाउसेस, जो कि किसमें सप्लाई होता है घर में, एसी या डीसी? इट इज सप्लाइड इन एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में आपके घर में आता है, अभी उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? आपके घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, और वो जो करंट है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है इन सम पावर हाउसेस, और आपके घरों में थ्रू वेरी थिक पाइपलाइंस और सप्लाई चेन से आपको सप्लाई किया जा रहा है, एंड दैट इज यूज्ड टू रन मशीन्स इन योर हाउसेस, राइट? आई इतनी बात समझ में कि नहीं आई? ओके। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्जेस दे गो टू अ पॉइंट एंड देन दे आर एट रेस्ट एंड दे मेक द बॉडी चार्ज। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में द चार्जेस आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसा ही द स्विचेस ऑफ द मोशन ऑफ करंट्स, इलेक्ट्रॉन स्टॉप, तो इलेक्ट्रिक करंट भी बंद हो जाएगा, राइट? तो डायनेमिक और current electricity is when the charges are continuously in motion, so the current is supplied till the charges are in motion. Understood or not beta? Okay, now very important concept starts here, electric potential, जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ध्यान से सुनो, पोटेंशियल क्या है? आप मुझे बता सकते हो अगम, आपका पोटेंशियल क्या है जिम में? हाउ मेनी केजीज कैन यू लिफ्ट? Now depends exercise to exercise. डिफेंस एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। तो पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो हम इंग्लिश में लिटरल मीनिंग क्या लेते हैं पोटेंशियल का? Capability. कैपेबिलिटी, लाइक। तो कैपेबिलिटी, और क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे पोटेंशियल की फॉर्म में देखें तो इजी नहीं हो जाएगा? तो फिजिक्स की डेफिनेशन भी समझेंगे, और इसकी लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, वो भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअली क्या है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं किसे कह सकती हूँ? मैं कह रही हूँ एक पॉजिटिव चार्ज है, छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है मैंने, और एक कुछ छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है जो इन्फिनिटी पे कहीं कोई पॉइंट है। इन्फिनिटी यानी एनीवेयर, इन्फिनिटी मींस एनीवेयर अराउंड इट। कोई वहां से उससे दूर कोई एक चार्ज है, तो वो उसे किस पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसे अपनी तरफ किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या हम इसे पोटेंशियल कह सकते हैं? देखो एक बार डेफिनेशन पढ़े। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक पॉइंट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसने क्या काम किया? क्या काम किया? इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, राइट? है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना।
अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉजिटिव पॉइंट लिया, इसने कितना काम किया, जिम में अगम ने कितना काम किया, इस अगम्स पोटेंशियल, राइट? तो यहाँ पर भी उस पॉइंट चार्ज ने कितना काम किया इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कहीं से भी इंफिनिटी से ये पॉइंट यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इस पॉइंट ने उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में कितना काम किया, इज इट्स पोटेंशियल, राइट और नॉट? है ना, समझ सकते हैं ना ऐसे? तो अगर आई कैन डिफाइन, अब इसमें से एक भी चीज मिस्ड, इफ यू मिस राइटिंग वर्क डन, इफ यू मिस राइटिंग केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो always remember, each and every definition is like should be by heart. इसमें इतना सा चेंज भी फिजिशिस्ट डोंट अलाउ, टीचर्स डोंट अलाउ। तो जो डेफिनेशंस है उसी को एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड लिखना है, इसमें नो क्रिएटिविटी इज इनकरेज्ड। ओके, सो व्हाट इज दिस पॉइंट हियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? जैसे अगम का पोटेंशियल क्या है, अगम ने कितना वेट लिफ्ट किया, कितना काम किया, राइट? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है, बाय व्हाट? बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किस, कहां पर रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या करने के लिए? कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट पर आने के लिए उस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हुए कितना काम किया है, इज इट्स पोटेंशियल। गुड इनफ और नॉट? समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? Yes, तो ma'am. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली उस चार्ज का पोटेंशियल है ना, मैं कहाँ से घूम के कहाँ तक आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अब फिजिसिस्ट की तरह इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे इसे एक्सप्लेन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में? इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज द वर्क डन। ये वो वर्क डन है जो कि किया जा रहा है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाकर रखने में उस पॉइंट का पोटेंशियल है। मैं यहाँ एक पॉइंट हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां एक पॉइंट है इंफिनिटी पे, वहां से मुझे एक चार्ज को, एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाना है, तो ये मेरा पोटेंशियल है, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? सिंपल है ना, याद हो जाएगा। तो सारे की पॉइंट्स कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done by a unit positive charge from infinity of moving, of actually work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। हो गए सारे एस्पेक्ट्स कवर? अच्छे से समझ में आ गया? बोलोगे तो नहीं, डेफिनेशन आएगी 1 मार्क की, इतू सी भी गलती और क्रॉस होकर 0 मिलेगा, हाफ का भी कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, चले अभी आगे। तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल केस वी, ये एक इसका नोटेशन है, कैपिटल केस वी से आप इसे जनरली डिनोट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट्स में नापा जाता है, तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरीके से पोटेंशियल को आप नापते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे मेजर करते हैं। सो द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस, इसका मतलब क्या है? 1 जूल ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन के साथ स्टिक कर रहे हैं फिर से हम लोग। पोटेंशियल क्या था? इट इज एक्चुअली एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन। तो वर्क डन जूल्स में मेजर होता है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट मींस 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट, मींस 1 यूनिट पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जो वर्क डन 1 जूल होगा, उसे ही 1 वोल्ट पोटेंशियल कहेंगे, राइट? अब जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। That is the teacher's favorite question. Define 1 volt, define 1 joule, define 1 watt, right? तो वो कैसे करना है? डेफिनेशन के साथ स्टिक करना है, सिर्फ डेफिनेशन में सब कुछ 1 1 1 1 कर दो। तो वन पोटेंशियल, a potential of 1 volt can be defined as the work done of 1 joule in moving a unit positive charge. A unit positive charge means 1, in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. Simple, क्लियर एवरीवन? लिखो जल्दी से नोटबुक्स में 1 वोल्ट की डेफिनेशन फटाफट से।
यहाँ से लिख लो भले, ये जहां पर उन्होंने और स्पेसिफिकली वन वन यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज लिखा है, वहीं वहीं से उसमें जो कूलम वर्ड ऐड कर दिया, वहां से लिख लो। देखो, ये रहा अ पोटेंशियल, हाईलाइट किधर गया मेरा, राइट, अ पोटेंशियल ऑफ 1 volt at a point means 1 joule of work done is done in moving 1 coulomb of positive charge। यहाँ पर 1 यूनिट लिखा था ना, तो 1 यूनिट क्या होता है पॉजिटिव चार्ज का, इस कूलम, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आ गया बच्चे समझ में सबको? क्या है किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इज इंफिनिटी से भी कोई वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो काम करना है, वो मेरा पोटेंशियल है। मैं किसको यहाँ तक कैसे ला सकती हूँ ना, वो मेरा पोटेंशियल है, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर है ना? नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इसे समझने के लिए एक बेसिक सी चीज समझते हैं सबसे पहले बेटा। सो टेल मी एवरीवन, आपने देखा है कि टेबल टॉप के ऊपर इफ यू पुट सम वाटर, डज इट फ्लो? नो। टेबल टॉप है ना, बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पानी डालोगे उसके ऊपर रुक जाएगा पानी, इट वोंट फ्लो एनीवेयर। फॉर द वाटर टू फ्लो, क्या करना पड़ेगा आपको? यस, दोनों की है हाइट्स में डिफरेंस क्रिएट कर दोगे। ऐसे है तो ऐसे कर दोगे, राइट और नॉट? अगर हाइट में डिफरेंस हो जाएगा तो वाटर फ्लो कर जाएगा कि नहीं? कर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर आपको करंट को फ्लो कराना है, किसी यूनिट चार्ज को मूव करवाना है, तो आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देना है। एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल। अपने आप ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस से। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जस्ट एज वाटर फ्लोज व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट, वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स इन द टू प्लेसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली वहां पे चार्जेस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और चार्जेस मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो फ्रॉम सम पॉइंट टू दैट पॉइंट ब्रिंगिंग अ चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। So when you connect actually a circuit to the two poles of a battery, two sides of a battery, what are you doing? You are actually giving it different potentials that are there in both the ends. So you are creating potential difference when you are plugging in a circuit, a small circuit to both the sides of a cell or a battery. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, या चीजें स्टार्ट्स टू हैपन, बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो, राइट और नॉट? समझ में आ रही है सबको बात? तो व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर ये दो पॉइंट्स है, 1 and 2, so electric potential in the points में is defined as how is this difference in this in these 2 points का potential is defined? The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done, जितना काम हुआ है, done in moving a unit positive charge or a unit charge. Now we are not bothered for positive or negative. A unit charge from one point to the other. मतलब यहाँ से तक चार्ज लाने में जो काम हुआ है, that will be the potential difference, right or not? Difference in the heights is difference, height difference no. So difference in two potentials is potential difference. यहाँ ये फर्क है कि from infinity to that point बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि we have got two reference points. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है दोनों में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट और नॉट? तो हम ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन एक्चुअली। ये वो काम किया जा रहा है जो यहाँ से यहाँ तक किसी एक चार्ज को फ्लो कराने के लिए किया जा रहा है, राइट? सिंपल है ना? आ गई बात समझ में? जल्दी से लिखो इसकी डेफिनेशन। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge now. A unit charge or 1 coulomb charge from one point to another. तो एक कूलम चार्ज सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए कितना काम हो रहा है, हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे।
सिंपल है, रिटन डेफिनेशन। सो अब हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं लग रहा मैं स्पीड की डेफिनेशन बता रही हूँ, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, ऐसा लग रहा है ना, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है कितने यूनिट टाइम में, ऐसा ही कितना काम हुआ है यूनिट चार्ज को मूव करने में। सो दिस इज हाउ इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सप्रेस्ड एज वर्क डन ओवर द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस मूव्ड। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे 10 कूलम चार्जेस को हिलाने में 20 जूल्स काम करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 जूल्स बाय 10। क्योंकि एक्चुअली मुझे 1 यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो फाइंड करना पड़ रहा है, मैं यूनिटरी मेथड से डिवाइड ही करती हूँ ना। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? देखो मैं फिर से लिखती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आपसे बोला कि मैंने 10 कूलम चार्ज को मूव करने में 20 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम की है। तो यूनिटरी मेथड में अगर मुझे 1 कूलम का वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे करती हूँ, 20 बाय 10 करती हूँ ना। तो वर्क डन अपॉन चार्जेस मूव्ड कूलम में will actually give me 1 coulomb moved के लिए वर्क डन, राइट और नॉट? तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? ठीक है ना? तो जब एक चार्ज को मूव करना है उसमें कितना काम करना है वो डिवीजन से पता लगता है। तो दैट इज हाउ यू मैथमेटिकली एक्सप्रेसेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, पीडी लिख रही हूँ अभी के लिए, वी से डिनोट करेंगे इसे, कैपिटल के इस वी से। So it is the work done. W by charges moved. So C. Right or not? आ रही है बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? क्लियर है? अच्छा अब ये जो Q है, मतलब मैं यहाँ Q लिख देती हूँ, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स एंड दिस क्वांटिटी ऑफ चार्जेस मूव दे आर मेजर्ड इन कूलम्स। तो जूल पर कूलम, कैन आई डिफाइन 1 वोल्ट एज जूल पर कूलम? 1 जूल पर कूलम, राइट और नॉट? गॉट इट और नॉट बच्चे? क्या मैं 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम डिफाइन कर सकती हूँ? यही तो समझ के आए हैं अभी तक। 1 joule is the work done in moving 1 unit of charge moved. 1 unit of charge moved is 1 coulomb charge moved, right or not? So how do you define 1 volt? 1 volt can be defined as the work done when 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from one point to another. आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? ओके तो देखो यही वो बात जो अभी मैं वहां पीछे समझा कर आई हूँ, V is W by Q. W is measured in joules and Q is measured in coulombs. So 1 volt can be defined as 1 joule by 1 coulomb. So the electric potential between 2 points is said to be 1 joules. अगर दो points हैं, इनके बीच का potential difference is said to be 1 volt. मैं हर बार ऐसे नहीं बनाऊंगी, ऐसे भी बना सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो तो अंदर माइक्रो लेवल्स पे है ना काम। तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट कह सकती हूँ कब, जब यहाँ से एक 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 कूलम चार्ज को मूव कराने में मुझे, यहाँ तक लेके जाने में मुझे जब काम करना पड़े 1 जूल। जब यहाँ से एक चार्ज को मूव करा रही हूँ मैं और लेकर कहाँ आ रही हूँ, दूसरी तरफ, दूसरे पॉइंट पे। तो जब एक एक पॉजिटिव एक कूलम चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ ट्रैवल करके जा रहा है और इसके काम करने में अगर 1 जूल्स एनर्जी कंज्यूम होती है, तब मैं इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स में डिफरेंस कह दूंगी 1 वोल्ट। ठीक है, बहुत बार ऐसे वैसे सब तरीके से समझा दिया, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा अभी तक। बोलो किसी को अभी भी डाउट है तो?
चले अभी आगे। देखो, इसे मैथमेटिकली ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 वोल्ट बाय 1 जूल बाय 1 कूलम। इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम के लिए इनवर्स ऑफ कूलम लिखेंगे हम, कूलम इनवर्स, क्योंकि पढ़ा है ना हमने 8th क्लास से एक्सपोनेंट्स में, दैट इज कूलम इनवर्स, राइट। इतनी बात आ गई सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, मूविंग अहेड, द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ, हाउ इज इट मेजर्ड? तो अभी आप लोग को फिजिक्स लैब लेकर जाएंगे, कुछ स्कूल्स लेकर जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते हैं। तो वहां पर दिखाएंगे आप ये वोल्ट मीटर, ये एक डिवाइस है बेटा, वोल्ट मीटर, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप वायर से कनेक्ट कर देते हो। जैसे मान लो आपका एक सर्किट है जिसमें एक तरफ सेल है और एक तरफ एक बल्ब लगा है ना, और साथ में एक स्विच है। इस तरीके से एक सर्किट बना है। तो आप इस सर्किट के दो वायर्स लेते हैं और इसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये स्क्रू जैसा होता है, इसे आप ओपन करते हो, जो वायर का न्यूड एंड होता है उसको इसके ट्विर्ल अराउंड करते हो और उस स्क्रू को टाइट कर देते हो। तो मेटल सरफेस जो है वो इसके वोल्टमीटर के मेटल पिन से टच होना चाहिए, और फिर आप उस स्क्रू को टाइट कर देते हो, राइट। और वो दोनों कनेक्शन में सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाओगे क्या है। और जैसे ही ये आप कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से स्विच ऑन होगा, तो ये निडल जो है यहाँ पर, ये आपको डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जहां से आपने इसे कनेक्ट किया। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? तो potential difference is measured by the means of an instrument called voltmeter. It is always connected in parallel. अब इस बात का क्या मतलब है, पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या मतलब है? तो बेटा दो तरीके से समझो। आप ऐसे समझो कि ये स्टूडेंट्स हैं, हम जब कराते थे तो हम लिटरली हम स्टूडेंट्स को खड़ा करके फील करवाते थे कि अब आप सीरीज में कनेक्टेड हो और अब आप पैरेलल में। तो व्हेन यू आर होल्डिंग हैंड्स वन विद ईच अदर, राइट, इस तरीके से, और फाइनली आपने किसी बैटरी सोर्स, लेट मी बी दी बैटरी सोर्स, ऐसे आपने हैंड्स होल्ड किए हुए हैं। जब आपने वन एंड टू दी वन एंड ऑफ दी बैटरी और दूसरा एंड आपका बैटरी की तरफ नहीं आया, आपने दूसरे पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, इसका भी एक एंड इस पार्टिकल से कनेक्टेड है, एक एंड इस पार्टिकल से, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। थर्ड पार्टिकल में ये वाला हैंड इस इन पार्टिकल से कनेक्टेड है, एक सिर्फ बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ऐसे अरेंजमेंट को आप कहते हैं दिस इज अरेंजमेंट इन सीरीज। आप डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिक गैजेट्स को जब इस तरीके से आपस में जोड़ देते हो कि वो पावर सोर्सेस सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आप उसे कहते हो दिस इज कनेक्शन मेड इन सीरीज। आई बात समझ में? तो पैरेलल क्या है? पैरेलल ये है, लेट मी बी द बैटरी सोर्स, ओके। तो आप सब बच्चे मुझे पकड़ के खड़े हो जाए, लाइक ऐसे, हर एक बच्चे का एंड बैटरी से दोनों एंड जरूर कनेक्टेड हो। तो अगर मैं इसे डायग्राम में बनाकर दिखाऊं, तो मैंने ये एक गैजेट अटैच किया, ये एक गैजेट अटैच किया, और ये है मेरी बैटरी। तो इस तरीके से सर्किट बना हो, देखो ये है, ये बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है, और यहीं से ही बैटरी के दूसरे एंड से ये भी कनेक्टेड है। ध्यान से देखो कैसे समझ में आता है सर्किट पैरेलल में है कि सीरीज में। आप ये सोचोगे ये वाला जो डिवाइस है, इसने डायरेक्टली कोई लाइन इसकी डायरेक्टली बैटरी तक ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट बैटरी तक डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूसरा गैजेट देखो इसी सर्किट में, ये एक गैजेट है, इसकी कोई सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बैटरी तक? यस। इसकी कोई सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यस। तो दिस एंड दिस रेड एंड ब्लैक गैजेट, दे आर बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। आई बच्चे बात समझ में? पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं? अब सीरीज सर्किट किसे कहते हैं? अगर मैंने इस तरीके से एक सर्किट लगाया है, दो गैजेट्स लगाए हैं, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये देखो ये वाला जो सर्किट है, इसका कोई लाइन डायरेक्टली इस तक कनेक्ट हो सकता है? हो गया।
यहाँ से दूसरा एंड कोई हो सकता है कनेक्ट, नहीं हो रहा, बैटरी तक नहीं आई कोई स्ट्रेट लाइन, है ना? तो ये नहीं, इसको चेक करें, इसका एक एंड बैटरी तक आ रहा है, दूसरा एंड अगेन बैटरी तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब दीज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। तो पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर। अब इस बात को समझते हैं कि अगर मैंने एक गैजेट यहाँ पर, एक कोई भी मैंने लेट्स से बल्ब लगा दिया, कुछ भी, कोई भी फ्रिज रख दिया, हेयर ड्रायर लगा दिया, कोई भी गैजेट, और मैंने इसे इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के साथ कंबाइन कर दिया। वोल्ट मीटर लगाने के लिए मुझे यहाँ से ही एक कनेक्शन पिक करना पड़ेगा, इस तरीके से। वाई? पैरेलल में कनेक्ट होगा मतलब ये सर्किट से दोनों एंड से बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आ रही है बच्चे बात? अभी ये जो मैंने लिखा सिस और पिड आपको समझाऊंगी क्या है, ये न्यूमोनिक है, अभी समझाऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर कैसे लगेगा हमेशा सर्किट के साथ पैरेलल में। बट क्यों लगेगा पैरेलल में? व्हाट इज द रीजन? कहीं नहीं लिखा, ना लखमीर सिंह में, ना एनसीईआरटी में, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन में Ma'am, देखा जाता है। parallel. Ma'am, if in series connection, if one of them fails, then the whole circuit fails. But in parallel, if one fails. बहुत अच्छी बात बताई है तूने मुझे, वेरी गुड अद्विका बेटा। लेकिन वोल्ट मीटर फेल्स और नॉट फेल्स, तो नॉट फेल्स का तो चांस ही नहीं है, नॉट फेल हो गया तो फिर उसमें रीडिंग ही नहीं आएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर बल्ब फेल हो गया, या जो भी आपने हेयर ड्रायर, जो भी यहाँ गैजेट आपने यूज कर रहे हो आप, ये फेल हो गया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं आएगी? आप ये कह रहे हो मुझे तो वोल्ट मीटर ही तो रीडिंग ही तो देखना है उसका, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो फेल और नॉट टू फेल वाला तो रीजन ही नहीं है वो। और सोचो, बट यू आर क्लोज। Ma'am, मैं it समझाऊं? might be different. मैं समझाती हूँ, लेट मी आंसर। जब मैं कह रही हूँ मुझे वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगाना है, तब मैं ये कह रही हूँ एक्चुअली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ऐसे किसी सर्किट में, वो अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो जाता है। तो इन केस आपने ऐसा किया, मान लेते हैं आपने ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पर आपने अपना वो बल्ब लगा दिया, और यहाँ पर आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होता है, अ, जो जब आप इस तरीके से सीरीज में लगा देते हैं ना, तो इस पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर सेम नहीं होता, वो यहाँ पर सेम नहीं होता, वो यहाँ पर सेम नहीं होता। तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, वो वो पर्टिकुलर टू दैट पॉइंट जो है, वो ठीक से पता नहीं चलेगा। कैसे समझाऊं, और इसे कैसे समझा सकती हूँ कि जब भी आप सर्किट्स देखते हो, इस तरीके से गैजेट्स कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। V1 V2 अलग अलग हैंगे। तो अगर आपने सीरीज में लगा दिया, तो आपको इन पर्टिकुलर पता ही नहीं आप किसका फाइंड कर रहे हो, किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है। तो अगर आपको इस गैजेट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इसे इसीलिए पैरेलल में लगाओगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है? तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इसे ये भी समझा सकती हूँ कि जो इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी द सेम इन्फर्ड हियर। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये पैरेलल में सेम आएगी इसकी, राइट? इसीलिए आपने उसे पैरेलल में लगाया कि यहाँ का एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पता लग सके। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, इसे समझाने के लिए, याद कराने के लिए न्यूमोनिक बता ही देती हूँ। SIS एंड PID, सिस एंड पिड। सो SIS से सीरीज में I मींस करंट। अभी मैंने ये सब इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, पर अभी एक एक ट्रिक बता रही हूँ। मैं ये कैसे बात सोच के आपको बता पा रही हूँ, और आपको कैसे आंसर लिखना है।
तो सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनो और छोड़ देना। जैसे ही आई इंट्रोड्यूस करूंगी चैप्टर में आगे करंट, वैसे ही लिखवाऊंगी ये चीजें। तो सीरीज में आई रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। तो जब भी आप कोई चीजें सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सबको सेम करंट मिल रहा होता है, राइट। लेकिन सीरीज में इसका उल्टा होता है, V इज डिफरेंट। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V और इसका V अलग हो जाता है। तो अगर आप सीरीज में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे तो आपको पता ही नहीं आप किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो। लेकिन पैरेलल में I इज डिफरेंट। जब आप पैरेलल में दो चीजें लगा देते हो इस तरीके से, तो इन्हें I जो है करंट, इन्हें अलग अलग सप्लाई होता है। इसका I और इसका I दोनों अलग हो जाएंगे, हालांकि आपने इन्हें सेम बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन करंट सप्लाई टू दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम करंट सप्लाई टू द अदर गैजेट। तो I डिफरेंट हो जाएगा पैरेलल में, लेकिन पैरेलल में V रिमेन्स सेम। तो इसे V और इसे V सेम मिलने वाला है। तो जब भी आप कोई चीज पैरेलल में लगाते हो उसे सेम V मिलता है। और आप सच में चाहते हो कि इस गैजेट का, ये जो भी गैजेट है, इस गैजेट का आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग मिले, इसीलिए आपने उसको पैरेलल में लगा दिया, क्योंकि पैरेलल में V इज सेम। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही? ठीक है, अद्विका समझ में आ रही है? ये होते होते सारे बच्चे गायब हो गए हैं क्लास से। Yes, टॉपिक ma'am. बोरिंग लग रहा है क्या, या ऐसे लग रहा है अपने बस की नहीं है, छोड़ो क्यों करना है? सब बच्चे क्यों No, भाग रहे हैं? ma'am. या ऐसे लग रहा है रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी? चक्कर क्या है ये? 8 स्टूडेंट से स्टार्ट की थी मैंने क्लास, 4 रह गए अब मेरे पास। कैसे बदमाश बच्चे हैं। आज सबको ठीक करती हूँ, शाम को रुको। अब मैं ऐसा करूंगी, बिना बताए ना सब्जेक्ट स्विच कर दिया करूंगी सुबह और शाम में, है ना? कोई प्लान ही नहीं कर पाएगा कि अब मैं क्या करा रही हूँ, मैथ्स या साइंस। फिर तो आना पड़ेगा सबको। मैम आज शाम की क्लास में मैम आज शाम की क्लास में हम 4 को कोई प्रिविलेज मिलनी चाहिए। आज शाम को हम यही चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो आप अपने आप ही आपको प्रिविलेज मिल गई, क्योंकि बाकी सबको तो चैप्टर समझ ही नहीं आया होगा, है ना? बट इसमें तो अनजस्ट हो जाएगा उन बच्चों के साथ जो बेचारे अभी स्कूल गए हुए हैं। वो भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पर कुछ तो ठीक करना पड़ेगा सबको। करती हूँ, आज थोड़ा गुस्से में डांटूंगी सबको। चलो अभी, तो अभी मैंने आपको ये बात याद करा दी कि आपको एग्जाम में लिखा आएगा व्हाई इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सर्किट। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे? आपको ये तो पता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बट व्हाई? ये तो कहीं नहीं लिखा। ये इसीलिए बिकॉज द V वोल्ट डिफरेंस इज द सेम इन पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल सर्किट में सेम। अभी मैं वेट करूंगी किसी का मुझसे ये सवाल पूछने का, और मैं इसका और डीपर आंसर भी दूंगी आपको। फिर मैं पिछले लास्ट 5 साल से क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी, एंड फाइनली लास्ट ईयर अ स्टूडेंट आस्क्ड मी द क्वेश्चन आई वांटेड टू हियर। कि बच्चे जब जब हम साइंटिफिक माइंड सोचते हैं कि बड़े इंक्विजिटिव होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो वो चीजें ढूंढते हैं और पूछते हैं। तो 5 साल में एक बच्चा मिला जिसने मुझसे ये बात पूछी कि ऐसा क्यों होता है, क्या क्या क्यों होता है। तो मैं पहले पढ़ा दूंगी और फिर मैं वेट करूंगी कि मेरे से कौन वो सवाल पूछेगा। देखते हैं कोई इस बैच में से पूछता है कि नहीं पूछता है, ठीक है? तो मतलब मैंने ये बता दिया कि आई एम लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन हियर। तो मैंने आपको ये समझाया कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है? तो उसे, उसके अंदर जो निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी वो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बता देगी इन बी। नाउ हियर इज वन इंपॉर्टेंट लाइन रिटन, अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर खुद जो एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर अपने अंदर बहुत रेजिस्टेंस है। अपने अंदर रेजिस्टेंस क्यों होगी इसके अंदर? वो खुद ऐसा डिवाइस क्यों बनाया? रेजिस्टेंस मतलब क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल्स इन द वे ऑफ करंट। तो वोल्ट मीटर खुद ऐसा डिवाइस क्यों बना है कि उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस क्यों डाली गई है? ताकि वो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे। जब करंट उसके अंदर से पास नहीं होगा ज्यादा, तो वो सर्किट का करंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो रीडिंग्स करेक्ट आएंगी फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो पैरेलल में आई इज डिफरेंट। आई डिफरेंट हो जाता है पैरेलल में। तो अगर आपको भी एक आई अलग से
डिफरेंट आई अगर आपको भी सप्लाई होने लग गया, तो फिर तो आप सर्किट का करंट कंज्यूम कर रहे हो उस डिवाइस को रन करने के लिए, तो सर्किट का करंट वेस्ट हो रहा है। इसीलिए आप उसे हाई रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह यूज करते हो वोल्ट मीटर को, जो कि खुद हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट यूज ही नहीं करता सर्किट का। और क्योंकि करंट यूज नहीं करता, तो सर्किट का करंट अनडिस्टर्ब्ड रहता है। आ गई इतनी बात सबको समझ में? ठीक है ना? तो मैं नोट कर लेती हूँ आप चारों के नेम्स, कि आप लोगों ने लास्ट तक मेरा लेक्चर अच्छे से सुना था। तो आज कुछ तो करते हैं बाकी बच्चों के साथ। मुझे नाम याद कराना सेकंड बैच में, किस किसने क्लास लीव कर दी थी। ठीक है? चलो, बाय बाय फॉर नाउ बच्चे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं या नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, कोशिश तो यही करेंगे, इसी को करते हैं। पहले 6 डेज लगा के मॉर्निंग इवनिंग की क्लास में आपको मैं ये चैप्टर पहले करा देती हूँ। ठीक है? तो अभी Yes. इसका मतलब मुझे आपको अभी के अभी ये रिकॉर्डिंग भी देनी पड़ेगी, कि दूसरे बच्चे जो देख सकते हैं वो देख कर आए क्लास में। है ना? चलो, बाय बाय बच्चा लोग। Thank you.